Azadji, AS, Smriti Usha Priya Darshini, Haryana Vice President BJP, Nishant Yadav, IAS Deputy Commissioner, Kala Ramachandran Sir, IPS Commissioner of Police, R.K. Sharma Sir, he's Chairman of the school, D.K. Sharma, Director, Alpine Convent School. Can we have a good round of applause? आइए रुकने नहीं चाहिए because this is the only way how we can show how much we love and respect it. Also, Director Mr. Sharma, Alpine Convent School. Can we have a huge round of applause? And wherever you are, this is the only way to show how much we respect our guests, right? There is no other way to do it. And we all know that great leaders are like a golden chance, once in a lifetime offer that we get to see them. But also I would like to request each one of you to remember that we are in a school and each one of you present here is an inspiration for our children out here. So the way we behave, the way we support and respect our leaders, these children will eventually do the same for you one day. So I would request everybody, without stopping, 1 minute clap for all the dignitaries who are here present in front. Can we have a huge round of applause for 1 complete minute? 1 complete minute. A big one. A thundering clap. A thundering clap. Can we have that? Everybody on my right? Yes? Can we have a thundering clap? Hands up and clap for them. Can we do that? We are here to pay tribute to the first Kargil martyr. We are here to show respect, and this is a great moment, and that's the reason why the Governor, His Excellency Honorable Sir, is here. So let's make this moment rememberable, remarkable, so that although we all say that nobody should be a martyr, but there is no other privilege like that. So let's make this a memorable moment so that all the children here give us so many more reasons that we can keep meeting in Alpine, we can keep meeting everywhere and paying respect. So we will begin with a prayer as a tribute. I would request the children and the music instructors, Mr. Atul and Mr. Sanjay, to kindly take a lead. We can stand and we can sing and pay honor and tribute. Let's wish. Do it, sing. Atul sir, start.
However, the circumstances that led to this Kargil war and brought two nuclear-armed neighbors to the principal remain mired mystery. The manifest aim of Pakistan to impose the Kargil war was to cut off the supply routes to Siachen and thereby make our deployment there untenable. But little did they know, we are Indians and nothing ever can stop us. The commendable contribution of all the armed forces we are all aware of. However, the contribution of the border security forces to the Kargil remains undisclosed to most of the general public. The crucial role played by the BSF in this war definitely needs to be put into perspective. It was that time, the cold winters of 98 and 99, when even our armed forces had left their base camp and moved down force. But it was the BSF who stayed strong there, determined, who did not let even the chilly weather to deteriorate their will. The role of our martyred Jawans is as immense as a solid rock in securing back our captured peaks in July 1999. Deputy Commandant Sukhbir Singh Yadav of 171 BSF, who did not even have time to acclimatize while being inducted, sacrificed his life to enemy fire during the process of supervising the deployment of his troops for the protection of the line of communication. His sacrifice was recognized by the award of the posthumous Gallantry Medal. The National Security Council Secretariat, which we all are aware of, in their report to the government on Kargil mentioned specifically that the BSF by far stands the most superior in their contribution to the Kargil. Today we have the children of Alpine Convent School, who you can already see on stage, who are going to depict and recreate the incidents that happened in the Kargil in the year 1998 and 1999. Because Swami Vivekananda once said that it's not important that everybody goes to the war or the battlefield and go and give their blood and shed their life. But he definitely said that each one, if we do our roles right, then we don't have to be bothered, because when we are right, the entire system is going to be right, and nobody then can even lay a single eye, an evil eye on our country. So with this, I would like to welcome our two amazing speakers of Alpine Convent School. We have Shiona and Yashasvi on stage, and I would really take this privilege and request everybody to please clap for them, because we never know, they might be the next speakers of the parliament. So can we have a huge round of applause for Shiona and Yashasvi? Over to you.
जवानों के जो सरहदों पर अपना जीवन बिताते हैं। फर्ज के नाम पर देखो कैसे ये वीर मुस्कुराकर मौत को गले लगाते हैं। सुप्रभात बच्चों, क्या आपको पता है कि हम 15 अगस्त को इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं? जी हाँ। अच्छा बेटे, तो तुम बताओ। इस दिन हमें आजादी मिली थी। इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बहुत खूब, लेकिन क्या आपको पता है कि देश की आजादी और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र प्रेमी सदैव खड़ा रहता है। जो बलिदान और साहस राष्ट्र प्रेमियों में देखने को मिलता है, उसकी तुलना और किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। क्या आप जानते हो हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीरों ने बलिदान दिया है? जी हाँ। तात्या टोपे, झांसी की रानी, शिवाजी राव, नाना साहेब। अति उत्तम। इन्हीं के साथ कुछ और नाम भी हैं, जैसे सरदार भगत सिंह, महाराणा प्रताप आदि। अध्यापिका जी, मुझे भी एक गीत के लिए अपना नाम लिखाना है। अच्छा, वह गीत क्या है? भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, झुक न पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वाह अमिता, ये तो बहुत ही सुंदर गीत है। अध्यापिका जी, क्या मैं भी गा सकता हूँ? बिल्कुल श्रीहान। अध्यापिका जी, मैं देश का वीर सिपाही बन देश की रक्षा करूँगा। निसंदेह, राष्ट्रभक्ति से बड़ी और कोई भक्ति नहीं। और इसीलिए 15 अगस्त को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और एक बात बताऊं, आजादी के समय हमारे देश के चारों तरफ एक ही स्वर सुनाई देता था। अध्यापिका जी, मैं जानता हूँ कि वह स्वर क्या है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पिताजी, आज हमारी कक्षा में 15 अगस्त के बारे में चर्चा हुई है और मैं सिपाही बनूंगा। अच्छा, जब देखो यही खेल खेलते रहते हो। बढ़िया है, तुम्हें भी अपने पापा की तरह सिपाही बनने का बहुत शौक है। जरूर बड़े होकर तुम दुश्मनों की छुट्टी कर दोगे, मुझसे भी बड़ा अफसर बनोगे। मेरा लाडला बेटा है, मैं ना भेजूं इसे फौज में। आपकी तरह मेरा बेटा भी घर से दूर रहेगा। मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। नहीं माँ, मैं तो पिताजी की तरह एक वीर सैनिक बनूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम खाना लगा दो, अभी तो बहुत समय है, बाद में देखेंगे कि ये क्या बनता है। नहीं पिताजी, मैं तो देश के दुश्मनों के साथ ही लड़ूंगा। ठीक है, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। समय का पहिया घूमता गया। अब नन्हा सुखबीर बड़ा हो गया, पर उसके मन में देशभक्ति का जज्बा यूं ही समाया था। अगला कैंटीन का है, जहां सुखबीर जी अपने कॉलेज खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ अपने भविष्य को लेकर कुछ बातें करते हैं। अरे भाई सुनो, तुमने कुछ सोचा है आगे का? भाई मैंने तो सोचा है आगे अपने पापा के साथ अपना खुद का काम करूंगा। अरे भाई, मैं तो स्कूल में पढ़ाऊंगा, सरकारी नौकरी होगी और आराम से जिंदगी मजे लूंगा। अरे भाई, हमें तुझसे यही उम्मीद थी। अरे सुखबीर, तुम इतने चुप क्यों भाई? आगे भी बताओ तुम्हें क्या करना है। देखो भाई, मेरा तो बचपन का सपना है, मुझे तो अफसर ही बनना है। ओहो सुखबीर, तुझे अंदाजा भी है अफसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? भाई 4 बजे उठना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है और दौड़ भी लगानी होती है। और भाई घर से भी दूर जाना पड़ता है। भाई तू हैंडबॉल में चैंपियन है, तू बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, तू टेनिस भी अच्छा खेलता है, तू स्पोर्ट्स में जाना।
चलो एक काम करते हैं, हम तो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, फ्यूचर की टेंशन ही खत्म, खेल का खेल और जॉब की जॉब। अरे तुम सब हंसना बंद करो, अब कॉलेज सचमुच में खत्म होने वाला है, आगे क्या करने का सोचा है? अरे भाई इसे तो लड़ने का भूत सवार है। अरे भाई लड़ने का नहीं, देश के लिए कुछ करने का। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लग गए तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? अरे भाई मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये ऐसा ही है। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो, जिसे जो बनना होगा वो बन जाएगा। अब हम घूमने चलें? हाँ चलो भाई चलो। सही बात है भाई। अपने सपने को पूरा करने के लिए सुखबीर सिंह जी ने जी जान से मेहनत करके बीएसएफ की परीक्षा पार की और प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए। तभी मेरे लिए पत्र। सुखबीर सिंह यादव, आपका चयन बीएसएफ के लिए किया जाता है। आपको ट्रेनिंग के लिए कैंप में रिपोर्ट करना होगा। पिताजी, मुझे बीएसएफ से पत्र आया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। बहुत खूब बेटा, आखिरकार तुम बीएसएफ में भर्ती हो ही गए। बीएसएफ में जाना कोई छोटी बात नहीं है, मुझे तुम पर बहुत नाज है। धन्यवाद पिताजी। अरे सुनती हो सुखबीर की माँ, हमारा बेटा बीएसएफ में भर्ती हो गया। खुश रहो बेटा, खुश रहो, मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। मुझे हमेशा से पता था कि ये हमारा नाम रोशन करेगा। माँ, मैं अपने दोस्तों को ये खुशखबरी बता के आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, लाल 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 लाल। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके बाद सुखबीर सिंह जी ने अगस्त 1986 में बीएसएफ में कमीशन प्राप्त किया। एक वर्ष के कड़े प्रशिक्षण के बाद वे डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हुए और 1987 में उनकी पहली नियुक्ति जम्मू कश्मीर में हुई। यहाँ उन्होंने कई आतंकियों का सफाया किया। इसके लिए उन्हें सेवा मेडल से भी नवाजा गया। चलो हम 1988 की उस भूमि पर ले चलते हैं जहां हमारे वीरों को आतंकवाद का सामना करना पड़ा था। आज हिंदुस्तानी फौजियों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। आज फतेह हासिल करके रहेंगे हम। भाग जाओ हिंदुस्तानियों, हम तुम्हें इस सरजमीन पर पाँव भी नहीं रखने देंगे। ये जम्मू कश्मीर हमारा है और हम इनका यहाँ से सफाया कर देंगे। चिंता मत कर आतंकवादी, इस जंग के मैदान पर हम अपना तिरंगा लहरा कर ही वापस जाएंगे। इन आतंकवादियों को मार गिराओ, ये जम्मू कश्मीर हमारा है। लड़ाई करनी है तो आर पार करो आतंकवादियों, ये पीछे से आतंकवाद का सहारा क्या ले रहे हो?
सिपाहियों, हमारी फतेह हुई। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के बाद 1988 में उन्हें आतंकवाद से ग्रस्त पंजाब भेज दिया गया, जहां बहादुरी से मुकाबला करने के कारण वे उनकी हिट लिस्ट में आ गए। कंटोनमेंट एरिया, जहां सभी जवान अपने कार्य में व्यस्त थे, तभी एक सिपाही उनकी चिट्ठियां लेकर आता है। सब अपनी चिट्ठियां पढ़कर बहुत खुश हैं। अरे अरे, सबकी चिट्ठियां आई है। रुको रुको, सबको मिलेगी। ये मेरी है, ये मेरी है। दिखाओ। अरे तुम्हारी चिट्ठी में क्या लिखा है? देखो मेरे घर वालों ने क्या लिखा है। लगता है इस बार घर जाऊंगा तो शादी करवा के ही मानेंगे। सुखबीर सर, आपकी चिट्ठी में क्या लिखा है, जरा हमें भी सुनाइए। बस वही भाई, सब पूछ रहे हैं घर कब वापस आओगे। मेरी बेटी ने तो ना जाने कहां कहां जाने का प्लान बना लिया है, और मेरा बेटा कहता है जब वापस आओगे तो आपके साथ खूब सारे खेल खेलूंगा। बस यही चिट्ठियां आती है और हमको एक सुहाने सपने में ले जाती है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चिट्ठी आती है, साथ बोलाती है, मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। समय का पहिया 1999 में सुखबीर जी और उनका परिवार घर पर भारत पाकिस्तान का रोमांचक मैच पापा देखो, इस बार गेंद सीमा के पार जाएगी। हाँ पापा, अब की बार हम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। इंडिया 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 इंडिया। देखा, मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान से कभी नहीं हारेगी। ये तो तुमने सही कहा सिद्धार्थ बेटा।
चलो तुम लोग मैच देखो, मैं अपने जवानों से मिलकर आता हूँ। पापा मत जाओ ना, अभी तो मजा आ रहा है। हाँ पापा प्लीज। हाँ मजा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैंने अपने जवानों को बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। तुम्हें तो पता ही है, एक सच्चा देशभक्त अपने समय का पाबंद होता है। हाँ हाँ, देश पहले क्रिकेट बाद में। जरूरी है क्या जाना? रुक नहीं सकते। देखो बच्चे भी कितनी जिद कर रहे हैं। कभी कभी तो हम सबको साथ बैठने का मौका मिलता है। कल चले जाना। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम घर पे सब कुछ संभाल लोगी। हेलो सुखबीर, तुम्हें अभी 6 जवानों के साथ कारगिल सीमा स्थित अल्फा टिग्री कॉम्प्लेक्स एडम बेस 26 पर जायजा लेने के लिए निकलना होगा। जी सर। साथियों, अब फिर एक परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जी सर, हम तैयार हैं। एक और सुखबीर सिंह यादव जी अपने साथियों को प्रोत्साहित करने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ जंगल में आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। साथियों, हमें खबर मिली है कि सुखबीर और उसके साथी यहाँ से गुजरने वाले हैं। आज सुखबीर और उसके सिपाहियों को मारने का अच्छा मौका है। जब बीएसएफ की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, हम तभी उसे बम से उड़ा देंगे। जी जनाब। How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुखबीर जी अपने जवानों के साथ अल्फा टिग्री कॉम्प्लेक्स का जायजा लेने जा रहे थे कि सर, आगे तो बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, गाड़ी आगे कैसे जाएगी? सर, अभी हटा देते हैं। हाँ ठीक है, पर सावधान रहना। जी सर। इन हिंदुस्तानियों ने सबको मार गिराया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कनिष, कनिष, उठो मेरे भाई, उठो मेरे भाई। कनिष, कनिष, रेहान, रेहान क्या हुआ है? क्या हुआ है? दिविज, 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 तक्ष, भाई उठ, क्या हुआ है यार? क्या हुआ है यार? सुखबीर सर, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए सुखबीर सर, सुखबीर सर। हम फिदा जानो तन साथी। 26 मई 1999 यह पाठ उसी दिन का है। हमारे सुखबीर सर अपने साथियों के साथ निगरानी पर गए थे, यह देखने के लिए कि उनके इलाके में सब सुरक्षित थे या नहीं। यह वही दिन है जब हमारे जवानों ने कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने।
you very much. On behalf of our director, Mr. D.K. Sharma and Rekha Sharma, and the chairman, Mr. R.K. Sharma, this is a promise to everyone present here. We do understand that we can never take the place of the martyr Sukhbir Singh Yadav ji, but this we can definitely do, that for what he gave his life, that will be preserved. And no matter what comes our way, we will be a true citizen, and we will make sure that when our country calls, we will definitely be there. With this, we would end the small presentation by the students of Alpine Convent School, and I would request everybody to please clap for them, because they have been putting a lot of effort, because for them, they haven't seen someone like God, but they have seen leaders like you who tell them and inspire them to be great. Thank you very much. I would now request Mr. Madan Sahni ji to kindly take over. Can we have a huge round of applause for sir? नमन, अभिनंदन, स्वागत, जय हिंद। बच्चों ने बड़े प्रभावशाली ढंग से कारगिल के प्रथम शहीद श्री सुखबीर सिंह यादव जी के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया। मुझे लगता है आप सबको इस प्रस्तुति ने जरूर प्रभावित किया होगा, और मैं कल्पना कर रहा था कि बहन सुधा यादव को अपने उन दिनों की याद आई होगी जब वक्त बहुत खूबसूरत रहा होगा। लेकिन सैनिकों के साथ उनकी नियति से ये जुड़ा हुआ है। जहां वीर अपनी शहादत देकर चले जाते हैं, वहां पीछे वीरांगना पूरे परिवार को संभालती हैं, पालती हैं, बड़ा करती हैं। और वो बात बहन सुधा यादव जी के जीवन में स्पष्ट झलकती है। उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से किया। बेटी आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस से एमबीए करके लौटी। बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम करने के बाद एलएलबी और एलएलएम करके सेवा कर रहा है। मैं नमन करता हूं ऐसी वीरांगना को, नमन करता हूं उस वीर शहीद को जिनकी स्मृति में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे बीच इस स्मृति सभा में हरियाणा के राज्यपाल महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्रीय सरकार में मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, और हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ अनेक गणमान्य नागरिक और भाजपा के अधिकारी और नेता यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं बहन सुधा यादव को, वो आए और अपने भावों के माध्यम से, उससे पूर्व यदि व्यवस्था ऊपर व्यवस्था तो मैं चाहूंगा कि बहन सुधा यादव हमारे मुख्य अतिथि महोदय को साथ लेकर मंच पर आए। उनके साथ ही भूपेंद्र यादव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। अल्पाइन स्कूल के बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। हेलो हेलो जी। ये सामने की लाइट्स थोड़ी अगर डिम कर दी जाए या डाउन कर दी जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन सुधा यादव को, वो आए और अपने अतिथियों के साथ साथ अपार जन समुदाय जो आज की स्मृति सभा में सम्मिलित हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें।
हरियाणा के राज्यपाल महामहिम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे साथियों, सेना में कार्यरत रहे ऐसे सभी पूर्व सैनिकगण, मैं आप सबका आज यहाँ आने पर तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। पिछले 23 वर्षों से हर वर्ष जो स्नेह आप सब लोगों का मुझे और मेरे परिवार को आज के दिवस पर मिलता आया है, इसके लिए हम सब आपके ऋणी हैं। और ये सम्मान, ये स्नेह हर उस जवान के प्रति श्रद्धा है जिसने भारत माता के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर किया है। ये सम्मान सदैव बना रहे, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, यही अपेक्षा करते हुए मैं पुनः एक बार अपने सभी अतिथिगणों का, मंचस्थ आदरणीय राज्यपाल जी का, भाई भूपेंद्र जी का, भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार ये साउंड एक बार सेट कर दें, फिर चेंज ना करें। हम अपने अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र से करते हैं और उसी परंपरा का निर्वाह सुधा यादव जी कर रही हैं। सिद्धार्थ उनका पुत्र सबसे पहले हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी का सम्मान कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, वन, रोजगार और पर्यावरण मंत्री, उनका अभिनंदन, स्वागत। और अब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि वो आए और अपनी भावांजलि, अपने विचारों के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री ओम प्रकाश जी धनखड़। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में शहीद सुखबीर सिंह यादव को भावांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित आए हैं। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, वीरांगना सुधा यादव जी,
तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। मुझे याद है सोमवीर सांगवान दादरी के विधायक यहाँ बैठे हैं। 17 मई को चरखी के सुरेश पहले शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में। 26 मई को सुखबीर सिंह यादव शहीद हुए थे। महामहिम सेना में हम 10% होते हैं, लेकिन शहादत में हम 25% होते हैं। 100 से अधिक शहीद कारगिल युद्ध में हरियाणा के थे। उन्होंने हमारे इस सुनहरे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान किया था। मुझे इस बात का गौरव है कि पंचायत मंत्री बनकर मैंने हर गांव में ग्राम गौरव पट लगवाए और हर शहीद का नाम उसके गांव में उजागर किया। एक एक गांव में 20-20, 25-25 शहीदों के नाम है। कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े, कोई विभाजन के समय लड़े, कोई 62 में लड़े, कोई 65 में लड़े, कोई 71 में लड़े, कोई कारगिल युद्ध में लड़े, कोई आतंकवाद से लड़े। जब मैं नारा लगाता था बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खून नहीं, हरियाणा के हर गांव के नौजवान का खून कश्मीर की भूमि पर गिरा है। हमारे हर गांव के वीर ने बलिदान दिया। गांव गांव वीर भूमि, अणगणित है वीर गाथा। अमृत महोत्सव के अवसर पर ये वीरो हरियाणा तुमको शीश नवाता, शीश नवाता। प्रथम स्वतंत्रता समर में भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी। गुड़गावा की भी बड़ी भूमिका थी। पूरा हरियाणा दधक गया था। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की सेना में भी हम 2715 थे। लगभग 325 लोग शहादत दिए थे, 450 लोग गायब हो गए थे। इस प्रदेश की वीरता की गाथाएं, एक एक वीर की कहानी किसी के भी हृदय में वो जज्बा, वो जोश, वो स्पंदन उत्पन्न कर सकती है। लेकिन ये वीर गाथाएं पब्लिक डोमेन में नहीं है। सोनीपत के लिबासपुर के उद्यमी राम को जब वो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो उनको और उनकी पत्नी को पेड़ पर कीले मारकर लटका दिया गया था। 35 दिन में मरे थे वो। झांसी की लाल सड़क पर कोलड़ियों से रगड़ दिया गया था रूपा खाती नांदा जाट को। रोनाथ के बिरड़दास स्वामी को तोप से उड़ा दिया गया था। झांसी के लाला फकीरचंद जैन और हुकमचंद जैन, फकीरचंद की उम्र 14 साल की थी, निर्दोष थे, उनके घर के सामने फांसी दे दी गई थी। बालोट के हीरा सिंह फोगाट 3 पीढ़ियों के साथ 42 के आंदोलन में जेल में थे। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि कांग्रेसियों ने देश के इतिहास को छुपाया। मैं इस साल 129 लोगों के साथ भूपेंद्र जी काला पानी गया था। अगर भारत के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दायित्व नहीं दिया होता पूरे देश से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का, तो शायद मैं
जान ही नहीं पाता कि कोई वहीं पर टापू भी है जहां झांसी की रानी की सेना के 200 लोगों को सबसे पहले ले जाया गया था। 736 लोग बाद में गए थे। 79 लोगों को एक दिन फांसी दे दी गई थी। देश के इतिहास में जिक्र ही नहीं है। लॉर्ड मेव को शेर अली अफरीदी ने मारा, देश के इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। इसलिए मैं ले गया था कि मेरे प्रदेश के लोग जाने, इतिहास की उन कड़ियों से जुड़े। और अमृत महोत्सव के इस साल में हर गांव-गांव में मुझे इस बात का आनंद है कि हमने 5200 शहीद परिवारों का इस बार 23 जनवरी पर जय हिंद बोस के नाम से हर गांव और वार्ड में कार्यक्रम किए और 5200 परिवारों का सम्मान किया। वो भाव हम जो अभिव्यक्त हुए उन परिवारों के, उनको भूल नहीं सकते हैं। मैं 2 बार इजराइल गया हूं। मैंने कई बातें इजराइल से सीखी। उन्होंने हर 1 किलोमीटर पर लिखा हुआ है, लड़ेंगे तो बचेंगे। 1 करोड़ यहूदियों में से 60 लाख मार दिए गए थे, 40 लाख बचे थे। इजराइल घोषणा करता है कि अपना देश जरूर होना चाहिए और आपको लड़ाका होना चाहिए। मैं उनका होलोकास्ट म्यूजियम देखने के लिए गया। जमीन के नीचे बनाया हुआ है। मैंने पूछा कि आपने आपको इस प्रकार से क्यों बनाया? उन्होंने कहा ये हमारे बुरे दिन थे और हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे और हम बताना चाहते हैं कि बुरे दिन भूल मत जाना, नहीं तो फिर से आ जाएंगे। इस देश ने विभाजन की विभीषिका को देखा है, 10 लाख लोगों को मरते हुए देखा है, 1.5 करोड़ लोगों को शरणार्थी बनते हुए देखा है। हमारे भी बुरे दिन थे। आजादी के अमृत महोत्सव में उन बुरे दिनों को हमको याद करना चाहिए। नहीं तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कौन फांसी के फंदे पर चढ़ा देता? कौन चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में मार देता? कौन इतने लोगों को जिनकी चर्चा हो रही है? 3,27,000 लोग। टीचर पूछ रही थी कितने लोगों ने बलिदान दिया? अब तक 3,27,000 लोगों की जानकारी है। 13,500 लोगों को कोर्ट से सजा दी गई है, इसका रिकॉर्ड बना है और उसमें 850 लोग हरियाणा के थे। ये रिकॉर्ड है। ये हमको याद रखना चाहिए। जो मुझे बात सिखाई कि बुरे दिनों को भूल गए तो फिर से आ जाएंगे। और तीसरी बात भी जो उन्होंने सिखाई उसका जिक्र करूंगा। उस होलोकास्ट म्यूजियम के बाहर जो मैदान है उसमें उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं 23,000 और एक एक पेड़ पर एक एक आदमी का नाम है। मैंने पूछा ये कौन है? बोला ये वो लोग हैं जो यहूदी नहीं थे, हमको बचाने के लिए मर गए, इसलिए दुनिया भर से हम इनका नाम खोज कर लाए हैं और एक एक पेड़ पर इनका नाम लिखा और हम इनको अब मरने नहीं देंगे, अमर रखेंगे। मैं जब पहली बार हवाई पर टापू पर गया तो खड़े होकर जब मुझे वहां के हमारे सांसद विष्णुपाद रे ने बताया, मुझे वहां खड़े होकर बड़ा दुख हुआ था कि हम उनको भूल गए जो हमारे अपने थे और इजराइल उनको याद कर रहा है जो उनके अपने नहीं थे, उनके लिए मरे थे। शहीद बड़े मन से गीत गाता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है मेरी आरजू। लेकिन जो काला पानी में शहीद हुए उनको तो देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, समुद्र में बहा दिया जाता था। इसलिए ठीक कहा बहन सुधा ने, ऐसे अनगिनत वीर, सुखवीर के नाम से उस अनगिनत वीरों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं 99 में जब ये शहीद हुए तो हलवासिया में पढ़ाता था। ऐसे हर शहीद की कहानी अपने विद्यार्थियों के लिए कमरों में लगाता था कि वो पढ़ते रहें, उनके क्लासरूम में ऐसी कहानियां लगी रहें। और उसी समय मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था हरियाणा का। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि हम किसी वीरांगना को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और मेरे पास सबका रिकॉर्ड था, तो मैंने कहा कि कोई लड़ाने लायक पढ़ी लिखी है, थोड़ी ठीक उम्र वाली है तो सुधा यादव है, बाकी बहुत छोटी उम्र की हैं। उन्होंने कहा उनका मुझे बायोडाटा भेजो। मैंने भारद्वाज जी होते थे हमारे
और रामोतार लांबा जी, उनको फ़ोन किया कि बायोडेटा मुझे कुछ बताइए। उन्होंने जो बताया मैंने उसी दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भेजा। उन्होंने कहा कि कल तुम चले जाओ सुधा यादव के घर पे। राकेश जी यहाँ बैठे, इनके पिताजी और मैं दोनों सुधा यादव के घर पर गए थे। मैं छोटा नेता था, ये मुझे कम जानती थी। कैलाश जी थोड़े बड़े नेता थे, उनको पहचानती थी। हमने बात की, सुधा ने कहा मुझे एसडीएम बना दो, एचसीएस लगा दो। हम बाहर निकले, कैलाश जी ने कहा कि वो तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, एचसीएस बनना चाहती है। मैंने कहा आप बता दीजिए बॉस को। उन्होंने अपने ढंग से बताया, मैंने अपने ढंग से बताया कि शाम तक तैयार हो जाएगी, चुनाव लड़ने के लिए बहुत अच्छी योग्य पात्र है। अभी उनको पता नहीं है, शाम तक जब लोगों से बात होगी और फिर जिस प्रकार से भावपूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आके इनके चुनाव की कमान संभाली थी और अपने माँ के दिए हुए कुछ रुपए ला कर दिए थे कि मेरी माँ जो थोड़े थोड़े पैसे मुझे देती है, उन पैसे मैं आज सुधा यादव के लिए लेकर आया हूँ। आप सब भी सहयोग करें। वो भावपूर्ण क्षण मुझे याद है। मैं विद्यालय को बधाई देता हूँ, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आज जो कथा उन्होंने बताई है, हर शहीद की ऐसी कथा हमारे हृदय में छाप छोड़ती है। वो रहे, क्योंकि मैं एक अपने मन की बात कह के बात पूरी करूँगा। मेरे गांव के पहले विक्टोरिया क्रॉस विनर हैं सरदार बदलू सिंह। 23 सितंबर में जो है 1918 में उनकी शहादत हुई थी और जॉर्डन में हुई थी। उनकी सिमिट्री जो है वो बनी हुई है इजिप्ट में। मैं इजिप्ट गया था तो मुझे गांव वालों ने बताया कि वहाँ अपने बुजुर्ग की समाधि है। तो मैं उस सिमिट्री में नतमस्तक होने के लिए गया तो वहाँ पर 400 भारतीय सैनिकों की समाधि थी। मुझे लगा मैं थोड़ी पवित्र मिट्टी यहाँ से ले चलूं। मैं वहाँ की पवित्र मिट्टी लेकर आया। तो जब लेकर आया तो मुझे लग रहा था कि 100 साल बाद मैं अपने बुजुर्ग को याद कर रहा हूँ, उसका सम्मान बढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब एयरपोर्ट से लेकर मैं गांव तक पहुंचा तो इतना जबरदस्त जनसैलाब उपड़ा था, मुझे लगा मैं इस शहीद का सम्मान नहीं बढ़ा रहा, इस शहीद ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। तो हम भी अभिनंदित हुए हैं, कर अभिनंदन आपका। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद माननीय धड़कन जी, आपके ओजस्वी और सारगर्भित वक्तव्य ने हम सबको अंतस तक छू लिया है। शहीदों के प्रति हम सब भारतीयों में जो श्रद्धा, जो प्यार, जो स्नेह है, वो आज के जन समुदाय में भी परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं अब निवेदन कर रहा हूं भारत सरकार के श्रम, रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी से कि वह अपने संबोधन, उद्बोधन और विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें और वीर शहीदों को अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय भूपेंद्र यादव जी। आज कारगिल के प्रथम शहीद स्वर्गीय सुखबीर सिंह जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी और एक लंबे समय से जिन्होंने संकट की हर परिस्थिति का सामना करते हुए धैर्य और गरिमा के साथ इस इलाके के लोगों को अपना परिवार मान के सेवा करी, बहन डॉक्टर सुधा यादव जी, मेरे सामने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, भाइयों और बहनों, डॉक्टर सुधा यादव जी मुझे आज अच्छी तरह स्मरण है कि उन्होंने 26 मई 2000 को धमलावास में एक खेल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष
हमारे इंदौर की ताई भी आई थी और लगातार पिछले 23 साल से उन्होंने कभी भी रुकने का, थकने का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है स्वर्गीय सुखबीर सिंह जी की जो पुण्य कार्य थे, उस विरासत को धैर्य और गरिमा के साथ बढ़ाने का काम किया है तो डॉक्टर सुधा यादव जी ने किया है। और न केवल इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, पिछले 23 वर्षों में लोगों के अनेक विषयों को लोकसभा में भी उठाया और एक जो बड़ी जिम्मेदारी उनको पार्टी ने तय करी थी कि आजादी के बाद पिछड़े वर्ग के लिए जिस संवैधानिक आयोग का गठन किया था, मैंने पिछले 3 वर्षों से देखा है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए, चाहे केंद्रीय विद्यालयों में 27% आरक्षण देने का विषय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के बच्चों को आरक्षण देने का विषय हो, और उससे भी बढ़कर जो विश्वविद्यालयों में हमारे एकल रोस्टर प्रणाली के कारण बच्चे प्रोफेसर नहीं बन सकते थे, उन सारे विषयों को प्रखरता से उठा करके और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों के कल्याण का काम भी डॉक्टर सुधा यादव जी के नेतृत्व में किया गया है। ये सच है कि हमारा इलाका एक सैनिक परंपरा का इलाका है और इस सैनिक परंपरा में लंबे समय तक लोगों ने लड़ाइयां लड़के देश के लिए बलिदान देने का, देश के लिए जीने के भाव के साथ काम किया। जो विषय धनखड़ जी कह रहे थे, कल अनायास ही वो विषय माननीय मनोहर लाल जी के साथ भी मेरा चला था। कल माननीय मनोहर लाल जी के साथ एक विषय मेरे उनके साथ चल रहा था और मैं मुख्यमंत्री जी का इस मामले में शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि एक विषय मैंने उनसे कहा था कि हमारा जो ये गुड़गांव है, ये इंडस्ट्रियल तो बहुत हो गया लेकिन ये हरा भरा गुड़गांव भी होना चाहिए। गुड़गांव में नागरिकों के सहयोग से अरावली के रेस्टोरेशन का काम किया। बीच में जब हम लोगों को हमने देखा तो ध्यान में आया कि एक 10,000 एकड़ का पहाड़ का ऐसा पैच है जिसको एक अच्छी सफारी के रूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हरियाणा की ये जो जमीन है, इसने देश के इतिहास को बार बार बदला है। तभी तो महाभारत की लड़ाई भी हरियाणा में हुई और पानीपत की तीनों लड़ाइयां भी यहीं पर हुई। और तभी तो 47 में जब कबायलियों के आक्रमण में जो सैनिक उतरे, हरियाणा के उतरे, और उसके बाद 62 की लड़ाई में भी चुशूल पे हरियाणा के ही इलाके के लोगों ने अपना बलिदान दिया। और 65 की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान 65 की लड़ाई चीन की थी के लड़ाई में भी, और 71 की लड़ाई में इस इलाके के लोगों को, यहाँ टीसी राव साहब बैठे हैं, वीर चक्र भी मिले हैं। और उसके बाद कारगिल की लड़ाई में भी स्वर्गीय सुखबीर सिंह जी और अनेकों सैनिकों ने बलिदान दिया। तो मेरा ये मानना था कि जब ऐसा कोई पार्क बनेगा तो हरियाणा की सारी विरासत का एक म्यूजियम भी बनना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि म्यूजियम्स का एक बड़ा रोल रहता है। और हम हरियाणा के इतिहास को जिस प्रकार से समझते हैं, हरियाणा का इतिहास सेना का इतिहास नहीं है, हरियाणा का इतिहास भारत के परिवर्तन का भी इतिहास है। और हरियाणा के लोगों में वो जज्बा है कि अब सेना ही नहीं, समाज के अब बाकी के अन्य क्षेत्रों में भी वो जाकर के काम करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा तो उदाहरण सुधा जी का ही है। धनखड़ जी सही कह रहे थे, जब वो चुनाव में लड़ने की बात आई तो उनको लगता था कि उन्होंने तो फिजिक्स में पीएचडी करी है, केमिस्ट्री में पीएचडी करी है। तो उस समय चर्चा आई कि केमिस्ट्री में जो पीएचडी करी है किस काम आएगी।
अगर राजनीति करनी होगी और चुनाव लड़ना होगा। और मेरे को ध्यान में है कि पहले चुनाव का जब हम संचालन कर रहे थे और 12, 1, 2 बजे तक गुड़गांव में लोग खड़े हुए थे, तो डॉक्टर सुधा जी ने, मैं उनके चुनाव का एक संचालन करता था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि लोग रात को इतनी देर देर तक कैसे खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना भी लोग राजनीति के लिए या राजनीति में नेताओं का स्वागत करने के लिए इतना तत्पर रहते हैं। लेकिन ये सच है कि जब कोई व्यक्ति कर्मठता के साथ, जब कोई व्यक्ति प्रतिबद्धता के साथ, जब कोई व्यक्ति किसी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, और जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को परिवार ना मानते हुए समाज को परिवार मानते हुए सेवा करने के लिए कार्य करता है, तो समाज उसका उसी तरीके से स्वागत करता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि जो गरिमा के साथ डॉक्टर सुधा जी का 1999 में, 2000 में इस इलाके में स्वागत किया, उन्होंने उस गरिमा को, उस प्रतिष्ठा को, उस लोगों की सेवा भाव को बनाए रखा। यही कारण है कि आज 23 साल बाद भी हम सब लोग स्वर्गीय सुखबीर जी और सुधा जी को, उनकी शहादत और सुधा जी की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो मार्ग गुड़गांव प्रशासन ने बनाया है वो निश्चित रूप से इलाके के नौजवानों को भी प्रेरणा देगा। जो उस मार्ग पे चलेंगे या उस मार्ग को याद करेंगे, उनको भी ये ध्यान में आएगा कि देश के लिए जीवन देना, देश के लिए जीना, इस जज्बे के साथ जीना, ये बड़ा विषय होता है। मैं इस अवसर पर सुधा जी के परिवार में भी, उनकी बेटी सौम्या जो एक बहुत अच्छा एजुकेशन ऐप चला रही है, और विशेष रूप से सिद्धार्थ जो हमारे विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय रहते हुए सामाजिक शैक्षिक आंदोलन में कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं ये कहते हुए देना चाहूँगा कि उनके पिताजी ने जो देश के लिए किया है वो उसी भाव के साथ अपने जीवन में भी प्रेरणा और सेवा का कार्य करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं भी मैं व्यक्त करना चाहूँगा। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर सुधा जी के सम्मान में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस इलाके के लिए जो संघर्ष किया है, और विशेष रूप से सांसद और पिछड़े वर्ग के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, ये समाज आपके उस कार्य का भी ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने संकट से अपने को भी निकाला और मजबूत होकर समाज को नेतृत्व देने का कार्य किया है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भी संकटों से निकलते हुए समाज के काम को करते हुए और समाज के भाव को आगे बढ़ाएं। ये भाव सब में जागृत हो, इसी अपेक्षा के साथ पुनः मैं स्वर्गीय सुखबीर सिंह जी को नमन करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये जो सुधा जी ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो एक गरिमा के साथ ये जो स्थान दिया, आगे भी वो निरंतर इस इलाके की सेवा और विकास के लिए तत्पर रहेंगी, और हम सब उनके साथ लगातार कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। और जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि बहन सुधा यादव के परिवार ने संकट के समय धैर्य और साहस का परिचय दिया, तो सामान्य समय में समाज सेवा को चुना। उनके पिता श्री सज्जन सिंह जी ने बहुत प्रयास करके इस क्षेत्र के कुछ गरीब बच्चों को एकत्र किया और उन्हें पढ़ाने का काम प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे, नियमित रूप से बैठने लगे, पढ़ने लगे और उनको शिक्षा के प्रति प्रेम उपजा, तो उन्हें नियमित स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया, और अपनी योग्यता और श्रम के बल पर आज वो बच्चे सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं तक पहुंच चुके हैं। ऐसे जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों को बहन सुधा यादव की बिटिया सौम्या यादव लैपटॉप भेंट करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती हैं, ताकि वह भी अन्य छात्राओं की भांति नई टेक्नोलॉजी से परिचित रहे, उससे वंचित न हो। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौम्या जी को और अतीत जी को कि वो आए, और जो बच्चे हैं, हमने 10 बच्चे चुने हैं, उन्हें वो लैपटॉप वितरित करें। अगर वो बच्चे यहाँ हैं तो मैं नाम बुलाऊंगा, उसी क्रम से वो आएंगे। बुलाऊं मैं बच्चों को? अनु अगर यहाँ हो तो आए। अनु आप आ जाएं बेटे।
जब मैं नाम बुला लेता हूं आप आ जाएं। ज्योति, आप भी पीछे पीछे आ जाएं। ज्योति के बाद ज्योति प्रजापति। अब सबसे पहले अनु आ रही हैं। Another defeat of pandemic, and Alpine Convent School has waived off the fee for those students who have lost their parents because of the COVID. So one such student is Satvik Garg, who's here with his mum, and I would request, sir, if you could please felicitate them with just this certificate. It will be of a lot of... Satvik Garg. ये आज के बच्चे कल हमारा नेतृत्व करेंगे, कल का भविष्य है। इनके हाथों में ही भविष्य सुरक्षित रहता है। आज ही का दिन था वो जब उनकी शहादत हुई। इसमें हम सब सम्मिलित हैं, लेकिन विशेष गर्व का विषय है कि माननीय महामहिम राज्यपाल स्वयं यहाँ पधारकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वचन हम सबको मिले, आपके विचारों से हम सब अवगत हों। माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी। शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर वर्ष मेले।
शहीदों की चिताओं पर लगेगी हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी कई निशा होगा। केंद्रीय श्रम रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, शहीद सुखबीर जी की धर्मपत्नी और पूर्व सांसद श्रीमती सुधा यादव जी, अधिकारीगण, वरिष्ठ गणमान्यगण और स्कूल के प्राचार्य, अध्यापकगण और प्रिय बच्चों, सभी को स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारा देश का इतिहास महाभारत के वीर सपूतों की शौर्य गाथाओं से अटा पड़ा है। देशभक्ति की भावना इसकी मिट्टी में कूट कूट कर भरी है, लेकिन हैरावल क्षेत्र की वीरता के चर्च तो देश के प्रत्येक भाग में सुने जा सकते हैं। इस वीर भूमि के वीर सपूत डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की कहानी भी उन वीर गाथाओं में शामिल है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे रणबंकुरे पे प्रति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और देश पर प्राण न्यौछावर करने पर कृतज्ञता प्रकट करता हूं। शहीद सुखबीर जी पूर्व सांसद सुधा यादव जी के पति है, इसलिए मैं उन्हें तथा उनके माता पिता को भी नमन करता हूं। देश में वीरों के अदम्य साहस और वीरता के इतिहास में हैदराबाद के वीरों की शौर्य गाथा को हमेशा याद किया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन हो या फिर आज़ादी के बाद की लड़ाई, यहाँ के वीर सपूतों ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपने प्राणों को आहुति देने से कभी परहेज नहीं किया। कारगिल युद्ध में भी सुखबीर सिंह जैसे अनेकों वीरों की शहादत की कहानियां सुनकर भुजाएं फड़क उठती है। कारगिल में शहादत देने वाले दामलावास निवासी मात्र 28 वर्षीय सुखबीर सिंह को अहिरवाला क्षेत्र में प्रथम कारगिल शहीद कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात सुखबीर सिंह ने दुर्गम व बर्फीली चोटी पर वीरता का जो इतिहास लिखा था वह हमेशा स्मरणीय रहेगा। रेवाड़ी जिला के इस छोटे गांव में 12 दिसंबर 1961 को पैदा हुआ। सुखबीर सिंह एक वीर पिता रघुवीर सिंह के वीर पुत्र थे। बचपन से ही पढ़ाई में ऋषि होने के कारण उन्होंने अपने पौतृक गांव में प्राथमिक शिक्षा और हिसार से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। बचपन से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने से 1986 में बीएसएफ में कमीशन प्राप्त कर डिप्टी कमांडेंट के पद नियुक्त पाई। वे 1987 में अपनी पहली नियुक्ति पर जम्मू कश्मीर गए और अनेक आतंकियों का सफाया किया, इसलिए उन्हें सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। और 26 मई 1999 देर शाम सुखबीर
अपने साथियों सहित कारगिल के शेनीगुंड इलाके में तैनात थे। खून जमा देने वाली बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन देशभक्ति की भावना, जज्बा बर्फीली हवाओं पर भरी था। भारतीय सीमा की चौकसी के लिए लगाए गए चेकपोस्ट का निरीक्षण करने जब वह जा रहे थे, तभी घाटियों के बीच घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। वह वीर बिना विचलित हुए जवाबी फायर करते हुए दुश्मनों की ओर दौड़ पड़े। उसी समय आतंकियों ने उनकी ओर एक गोला दाग दिया। दुश्मन के इस हमले में सुखबीर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं खोया और अपने साथियों को दुश्मनों को खदेड़ने का आदेश दिया है। घायल सुखबीर को तुरंत श्रीनगर की आर्मी बेस अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे वीरों की जितना सम्मान दिया जाए वह कम है। मैं यह जानकर बहुत खुश हूं कि भविष्य की इस सड़क को उनके नाम से जाना जाएगा। इस पर करीब 80 करोड़ रुपए का खर्चा होने की संभावना है। हरियाणा सरकार द्वारा सैनिकों को घायल होने पर 15 से 35 लाख रुपया तथा शहीद होने पर परिवारजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा 25 से 45 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा उनके गांव के सरकारी स्कूल का नाम भी शहीद सुखबीर सिंह पर उनके रखा गया है। शहीद की स्मृति में आज 12 छात्राओं को लैपटॉप भी दिया चुका है। इसके लिए सुधा यादव जी व उनका परिवार को बधाई के पात्र है और धन्यवाद दिए। ये आपको भी जानकर खुशी होगी कि सुधा यादव जी पिछले 10 वर्ष से अपने गांव के 25 परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन कर रही है। यही शहीद सुखबीर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए सीडीएस का नया पद सृजित किया है। इनकी देखरेख में हमारी सेनाओं को निपुणता में वृद्धि हुई है। आज अभी जो भारत अपनी भारत देश की एकता और अखंडता के लिए एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन, ये दोनों बॉर्डरों में भी हमारी सेना इतनी मजबूती से खड़ी है। और मैं आपको सभी को सूचित करना चाहता हूं, अभी भारत 1962 का भारत नहीं है, अभी 2022 का भारत है। का भारत है। आज इस भारत में आज जो है राइफल, सुपरसोनिक और सारे जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवीन से नवीनतम टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की ओर से डिफेंस को बहुत ही जो है आधुनिकता की है, मजबूती किया है। तो इसलिए आज मुझे विश्वास है,
मुझे पूरा विश्वास है अगर कोई भी देश अगर भारत के ओर तीसरी नजर से देखता है तो भारत आज उसको खड़ी से खड़ी जवाब देने के लिए भारत आज तैयार है, सेना भी उसी तैयार है। लेकिन जनता जो है, हम जो है, देश की एकता अखंडता के लिए जैसा सुखबीर सिंह जैसे जो लोग बलिदान हुए, उन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन हम लोग देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए हम सब छूअछूत को, जात पात को और सभी सारे विषयों को छोड़कर भारत एक है, हम 130 करोड़ भारतीय है, ये आवाज देश में सुने आना चाहिए। ये बहुत ही महत्व है। एक तरफ सीमाओं पर लड़ाई लड़के आज जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है, अद्भुत प्रदर्शन किया है, उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूं। उनकी जो बोलने की सहजता जो है, जो देशभक्ति है, उनके दिल से बाहर दिख रही है, तो ये भावना देश में 130 करोड़ लोगों में आना चाहिए, तभी जो है देश मजबूत होगा। तो इसलिए मैं इस अवसर पर अंत में अपने सेना पर गोलियां खाकर मां भारती की एकता व अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सुखबीर जी को मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आज की युवा पीढ़ी भी नेशन फर्स्ट स्लोगन को जीवन में धारणा करेंगे। मैं उन्हें पुनः नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि भारत मां के लाल, तूने फर्ज अपना अदा किया, जान हथेली पर लेकर दुश्मन को छिलता किया। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल जिनका संबोधन आशीर्वचन हम सबको मिला। इससे पूर्व कि मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बहन सुधा यादव के पुत्र सिद्धार्थ को बुलाऊं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम के उपरांत सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन करके जाएंगे। परिवार की ओर से अनुरोध है कि कोई बिना भोजन के ना जाए। दूसरा, एक कार्यक्रम संपन्न राष्ट्रगान के साथ होगा, इसलिए आपको तुरंत नहीं जाना है जब तक राष्ट्रगान ना हो। आप अपने स्थान पर, जैसी हमारा नियम है, सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे और राष्ट्रगान का। इसके बाद, इससे अतिरिक्त मैं आप सब अभी नहीं भैया, अभी तो धन्यवाद ज्ञापित होना आपके प्रति। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्धार्थ यादव जी, आप आए और आज के मंचस्थ अतिथियों के साथ साथ जो गणमान्य नागरिक, भाजपा के नेता और ये जन समुदाय यहाँ आया है, उन सब के प्रति आप धन्यवाद ज्ञापित करें, उनके प्रति आप अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। सिद्धार्थ जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा बाकी रहेगा। इन पंक्तियों को चिरतार्थ करने वाले आज इस सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। मंचस्थ हरियाणा के महामहिम राज्यपाल महोदय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी एवं सभागार में उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण, मुझे आप सबका धन्यवाद करने की जिम्मेदारी ऐसी सौंपी गई है, पर किन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं और किस किस चीज का मैं धन्यवाद करूं, ये कार्य मेरे लिए थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी,
जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, जो कल रात्रि में ही चंडीगढ़ से गुड़गांव आए और जिस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम के प्रतिभागी बने हैं, उनका इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, जिनका सतत स्नेह हमको मिलता रहता है, आज भारत सरकार के भी 8 साल पूरे हो रहे हैं और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी वो समय निकाल करके वो इस कार्यक्रम में शिरकत की, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाजपा हरियाणा के ओजस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, जो निरंतर प्रवास पे पूरे प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने भी एक बुलावे में इस कार्यक्रम में आने की हाँ भरी और यहां पर इतना समय दिया, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ सभागार में उपस्थित सभी विशेष हमारे अतिथिगण, सभी विधायक महोदय, विशेष रूप से नगर निगम गुड़गांव, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि इस सड़क का नामकरण भारत के एक वीर सपूत शहीद सुखबीर सिंह यादव जी के नाम पर करना है। नगर निगम गुड़गांव के सभी पार्षदगण, मेयर महोदया, सभी अधिकारीगण का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हृदय की गहराइयों से स्कूल के प्रशासन, प्रबंधक समिति, स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबका भी धन्यवाद करता हूं, जो बहुत दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए स्वयं से लगे हुए हैं। एक स्किट भी हम लोगों ने देखी, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे उसमें भी स्किट की तैयारी के लिए आ रहे हैं और स्कूल के डायरेक्टर शर्मा जी एवं सभी लोग जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की एक इतनी अच्छी तैयारी हम सब के लिए करी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में कई शहीद परिवारों के सदस्य भी उपस्थित हैं। मेरे पिताजी के साथ काम कर सेना में अफसर, ऐसे भी कई हमारे साथ उपस्थित हैं। कई सेना से रिटायर्ड अफसर भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही मैं जिला प्रशासन का, पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का, सफाई कर्मचारियों का, सभी उन लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में कुछ ना कुछ भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को इतना सुंदर आयोजन करने में अपना एक योगदान दिया, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आप सभी लोग जो बहुत दूर से चलते हुए यहां पर भी आए, जब से हर बार 26 मई का जो एक कार्यक्रम होता है, 1 माह 2 माह पूर्व हम सबको फोन आने शुरू हो जाते हैं। हर कोई पूछता है इस बार कहाँ का प्रोग्राम है, कहाँ आना है, कैसे प्रोग्राम है। तो पिछले 23 वर्षों से जो निरंतर स्नेह आप सभी का हमारे साथ बना हुआ है और आज के दिन भी जो समय निकाल करके आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को संभव किया, आप सभी लोगों का मैं शत शत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित ही मुझसे कुछ लोग छूट गए होंगे, कुछ नाम रह गए होंगे। इस कार्यक्रम के लिए बहुत से लोगों ने स्वयं से ही बहुत प्रयास किए, खुद ही सब लोग लगे हुए हैं। ऐसे जो भी नाम मुझसे छूट गए हों उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 4 पंक्ति कह के अपनी बात को पूरा करूंगा कि देशभक्ति भरी इस महफिल में, देशभक्ति भरी इस महफिल में आज अपनेपन सा एहसास है। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास है, खास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है नेतृत्व के सारे गुण सिद्धार्थ के पास हैं। एक अच्छा वक्ता आपने सुना ही है। धन्यवाद के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, आवाज ऊंची होनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।